Hello kids, welcome to grade 9 civics class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is the democracy in the contemporary world, and today's session is session number 2. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Before starting the session 2, let's recap what we have discussed in session number 1. So session number 1 में we have discussed about the country of Chile and how Salvador Allende was the president in 1973, and at that time then in 1973 there was a military coup in Chile, and the military took over, they took over the seaport, and when the defense minister came to his office they arrested him, and then the general of the commander they asked the president to resign, but President Salvador Allende he refused either to resign or to leave the country, but he feared for his life and also for his country. So आपको याद है बच्चों, उन्होंने एक एड्रेस किया अपनी कंट्री को थ्रू द रेडियो, एंड वी हैव आल्सो read the part of the speech that he gave, and that was his last speech. After that his house was surrounded by the military, and they started bombing his house, and that was the end of President Salvador Allende. And after Salvador Allende passed away, then the military took over, and the military, the person who was the leading person in the military, he was Augusto Pinochet. So he took over the country and he became the president. So Pinochet was the president of the country for 17 years, but in his rule there were a lot of people who were tortured, and he also didn't like anybody who was in support of democracy or also supported the views of Salvador Allende. So people whosoever wanted the democracy to be restored, he didn't like them, so he put them in the jail or tortured them. But in the end, in 1988, he put a referendum for the people, and he thought that people will say yes for him, but people of Chile still believed in democracy, so that's how they said no to the referendum, and this was the end of जो प्रेसिडेंट पिनोशे थे उनका जो एक मिलिट्री टेक ओवर उन्होंने किया था वो उसका एंड हो गया. And after that there were 4 presidential election that has happened in Chile, and different parties took participation in that, and we have also seen how a woman became the president of the country, and also she was the first defense minister of Latin America. So this is all we have discussed in session number 1. So now let's start with the session number 2. And in the session number 2 we will discuss about Poland, which is a country in Central Europe. So democracy in Poland, this will be the topic of session number 2. In 1980 Poland was ruled by the Polish United Workers Party. So जो Polish United Workers Party है वो रूल कर रही थी 1980 में on Poland. This was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe at that time. So ये एक one of the many जो communist parties थी जो rule कर रही थी several countries में East Europe के उस समय, वैसी ये एक पार्टी उनमें से ही एक ये पार्टी थी. The people could not freely choose leaders of the communist party or the government. So जो communist party थी उसके जो leaders होते थे या फिर जो government itself लोगों को elect करनी चाहिए, वो लोगों को freely वो नहीं कर सकते थे इसमें. तो उनको ऐसा कोई भी जो अधिकार है वो नहीं मिला था कि that they could freely choose the leaders जो उनको lead करेंगे politically, या फिर जो government होगी उसको भी उनको choose करने का कोई फ्री जो अधिकार होता है वो नहीं मिला था. The government in Poland was supported and controlled by the government of the Soviet Union, USSR, a vast and powerful communist state. तो जो गवर्नमेंट थी पोलैंड की उसको सपोर्ट और जो उसको कंट्रोल ऑल्सो करता था वो था सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी,
वो उनको कंट्रोल करती थी। और जो यूएसएसआर था वो दैट वी ऑल नो कि वो बहुत ही वास्ट और पावरफुल थे एट दैट टाइम। एक कम्युनिस्ट स्टेट थे, तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जो पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी उनको वो सपोर्ट करते थे, एंड दैट्स हाउ दे हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय देम बिकॉज दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट बाय द यूएसएसआर। तो दे इफ़ यू कैनॉट से द नो टू देयर सपोर्ट, जो सपोर्ट उनको दे रहे थे एक तो उनको कुछ ना कुछ उनको उनके द्वारा कंट्रोल भी होना पड़ता था। On 14th August 1980, the workers of Lenin shipyard in the city of Danzig went on a strike. तो 14th अगस्त 1980 को जो लेनिन शिपयार्ड था उसके जो वर्कर थे, और वो जो लेनिन शिपयार्ड था वो था सिटी ऑफ डांस में। वहाँ पे जो वर्कर थे वो एक स्ट्राइक पे चले गए, एंड जो ये शिपयार्ड था वो ओन करती थी गवर्नमेंट। तो सारे जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। Now the strike began with a demand to take back a crane operator, a woman worker who was unjustly dismissed. तो जो ये स्ट्राइक था उसका एक रीज़न होना चाहिए। यू कैनॉट जस्ट गो ऑन अ स्ट्राइक विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पे जो रीज़न था वो था कि एक जो वुमेन वर्कर थी जो क्रेन चलाती थी, शी वॉज अ क्रेन ऑपरेटर, उनको अनजस्टली डिसमिस कर दिया गया था। So because of that they were fighting for that right, because if you don't fight for your right, so you know something is happening today with you, then the next day किसी और के साथ फिर वैसा होगा। That's why जो यूनियंस होती हैं या फिर एक जगह लोग काम करते हैं, अगर अनजस्टली इनको लगता है कि डिसमिस किया गया है या something else is going on with them, unjustified जो है, so that's how जो लोग हैं किसी भी फॉर्म में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, that's why they go on strike. So this is why जो लेनिन शिपयार्ड में लोग काम करते थे, जब उन्होंने देखा कि जो एक क्रेन ऑपरेटर है, एक वुमेन क्रेन ऑपरेटर है, उनको अनजस्टिफाइबली उनको एक डिसमिसल कर दिया गया है, so they all went on a strike. The strike was illegal. जो ये स्ट्राइक थी वो इलीगल थी। नाउ विल सी व्हाई दैट स्ट्राइक वाज इलीगल, बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड। तो ये जो स्ट्राइक थी वो इलीगल इसलिए थी कि जो पोलैंड है वहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वो अलाउड नहीं थी। तो जो ट्रेड यूनियन है वो रूलिंग पार्टी से इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकती थी, तो वो इसकी वजह से जो ये इनका स्ट्राइक था वो भी इलीगल था। वलेशा हु वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो जो अब स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं, इफ दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, लेट्स से 100 पीपल आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, तो दे नीड अ लीडर, उनको एक लीडर की ज़रूरत होती है। एंड वाई दे नीड अ लीडर, बिकॉज कि जब 100 लोग किसी एक डिमांड के लिए कर रहे हैं या फिर दे हैव लाइक 2-3 ग्रीवांसेस और डिमांड्स, तो जो उनकी 100 पीपल तो जाके किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इफ दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सारे 100 लोग तो जाके बात नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। दैट्स वाई जो स्ट्राइक होती है तो एनी ग्रुप ऑफ पीपल उनको एक लीडर चाहिए होता है, बिकॉज जो वो लीडर होगा वो उनकी सारी ग्रीवांसेस हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको लेके जाएगा, एंड देन दे विल और दैट पर्सन विल टॉक टू द डिफरेंट पार्टी, जो दूसरी पार्टी है उनसे बात करेंगे। सो दैट्स हाउ दे वांटेड अ लीडर, और उन्होंने चूज़ करा किस लीडर को, वलेशा को। और वलेशा कौन थे, जिनको 1976 में डिसमिस किया गया था सर्विसेज से, बिकॉज उन्होंने हायर पे की डिमांड की थी। तो इसके लिए उनको ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका था, बट नाउ ही इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। सो स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने उनको अपना लीडर चूज करा। Strikers wanted the right to form independent trade unions. They also demanded the release of political prisoners and an end to censorship on press. So जो स्ट्राइकर्स थे उनकी जो ये मांगें थी वो ये थी, जो उनकी डिमांड्स थी वो ये थी कि वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन को फॉर्म करना चाहते थे। एंड वी हैव सीन इन द अर्लियर स्लाइड्स कि वो यहाँ पे अलाउड नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो ट्रेड यूनियन है अभी तक अलाउड नहीं था। सो दिस इज़ वाई दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिमांड।
और जो चीज़ें उनको चाहिए थी कि वो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, एंड ऑल्सो जो सेंसरशिप पे जो एक प्रेस की जो सेंसरशिप है उसको हटाया जाए। तो ये 3 मेन डिमांड्स थी उनकी जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स है। सो दे ऑल वांटेड कि ये जो सारी डिमांड्स हैं वो उनकी पूरी की जाए। The workers led by Valencia signed a 21-point agreement with the government that ended their strike. So in the end ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उनकी डिमांड्स को मांगा गया और उनके जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट था उनको गवर्नमेंट ने एक साइन करा उसको और उनकी बहुत सारी मांगों को पूरा करा, एंड ये जो स्ट्राइक थी वो ऐसे एंड हुई। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वो चाहते थे वो पूरी हुई। नाउ फाइनली दे कैन हैव एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। इससे जो ये होगा कि जो भी लेट्स से इसमें लेनिन शिपयार्ड के वर्कर हैं तो अब उनके साथ जो अनजस्टिफाइबल कोई भी चीज़ें होती थी, अनजस्टिफाइड जो डिसमिसल होता था वो नहीं हो पाएगा बिकॉज नाउ दे हैव अ ट्रेड यूनियन। After the dance agreement was signed, a new trade union called Solidarity was formed. तो जब ये डांस का एग्रीमेंट जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट हमने देखा जो साइन किया गया, उसके बाद एक नई ट्रेड यूनियन बनी और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम था सॉलिडारिटी। तो उसको फॉर्म किया गया। It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist state. तो जो भी कम्युनिस्ट स्टेट थे उसमें ये पहली बार हुआ कि कोई भी जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है उसको फॉर्म किया गया। तो जो सॉलिडारिटी थी वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी। The government led by General Jaruzelski imposed martial law in December 1981. Now we'll see कि how the government changed and General Jaruzelski जो थे उन्होंने 1981 में पोलैंड में मार्शल लॉ लगा दिया and thousands of solidarity members were put in prison. So जनरल जरोस्की ने जब मार्शल लॉ इम्पोज किया 1981 में तो सॉलिडारिटी के जो बहुत सारे जो मेंबर्स थे बिकॉज दैट वाज अ ट्रेड यूनियन, उसमें बहुत सारे मेंबर थे तो उनको प्रिजन में डाल दिया गया। Another wave of strikes again organized by Solidarity began in 1988. तो फिर से सॉलिडारिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने फिर से स्ट्राइक करी और उन्होंने ये जो स्ट्राइक थी वो स्टार्ट की 1988 में। सो जो स्ट्राइक थी नाउ उन्होंने स्टार्ट की 1988 में। तो उन्होंने फिर से ऑर्गेनाइज किया कि फिर से स्ट्राइक करें तो उनको जो उनकी डिमांड्स हैं फिर वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। Another round of negotiations with Valencia resulted in an agreement in April 1989 for free elections. Now we have seen कि वलेशा फर्स्ट टाइम इनके लीडर थे। अगेन वलेशा ने लीड किया जो स्ट्राइक थी और फिर से वलेशा ने जो नेगोशिएशंस किए उनको फिर से एक एग्रीमेंट हुआ और अप्रैल 1989 में उनको फ्री इलेक्शंस का एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के साथ। तो फिर से जो उन्होंने स्ट्राइक करी उससे उनको जो भी मांगी थी वो फिर से पूरी हुई। Solidarity contested all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. तो सॉलिडारिटी जो थी जो ट्रेड यूनियन थी उन्होंने 100 सीट्स सब में उन्होंने इलेक्शन लड़ा सीनेट का और उन्होंने उनमें से 99 जो सीट्स थी वो विन करी। तो इट वाज अ बिग विन फॉर सॉलिडारिटी कि उन्होंने 100 सीट्स में से 99 सीट्स पे विन किया जो इलेक्शन उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसमें। और वलेशा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। सो जो वलेशा थे जिन्होंने ट्रेड यूनियन बनवाई, जिन्होंने स्ट्राइकर्स को लीड किया, वो एंड में पोलैंड के प्रेसिडेंट बने। सो वी हैव सीन फ्रॉम वेयर ही वाज कमिंग, हाउ ही वाज डिसमिस्ड from his job because he was asking for a higher pay, and then how he led the जो भी उन लोगों ने स्ट्राइक्स करी उसमें उन्होंने लीड करा और ट्रेड यूनियन बनी। उसके बाद उन्होंने अगेन स्ट्राइकर्स को लीड किया एंड नाउ इन द एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। So what did we learn in this session?
we learned about the democracy in Poland. So we have seen how the scenario changed in Poland and how there was no independent जो एक trade union है, there was none in the communist state, and how in the Lenin shipyard it started, the strike started because of the women worker जो क्या थी बच्चों, जो एक क्रेन ऑपरेटर थी, तो उनकी वजह से ये स्ट्राइक शुरू हुई और इस स्ट्राइक को लीड किया बुलेशा ने, जो कि एक वर्कर थे वहाँ पे, बट उनको हायर पे डिमांड करने की वजह से उनको जॉब से डिसमिस कर दिया गया था। एंड देन इन द एंड वी हैव सीन कि उन्होंने 2 बार जो स्ट्राइक है उसको लीड किया, एंड इन द एंड उन्होंने जो कंट्री ऑफ पोलैंड है उसके वो प्रेसिडेंट बने। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द सेशन नंबर 2। थैंक यू।